Hello everyone. I welcome all of you in this robotic lecture series. So in today's class, we are going to talk about robotic end effector. So before we are going to start, let me give you a brief knowledge. When we talk about the robotics end effector, तो जो end effector होता है वो end effector क्या होता है? That is the tool जो हमारा जो है ना, जो भी रोबोटिक काम होगा या फिर जो भी मेरा मैनिपुलेटर होगा, उसके रिस्ट जॉइंट पे जो है ना, जिसको हम लोग कंबाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड इफेक्टर बोलते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टास्क विल बी डन बाय दिस एंड इफेक्टर. तो दिस एंड इफेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is the working tool of this particular robot or the manipulator. जो भी मैनिपुलेटर के बारे में बात करें तो जो भी जो है हमारा जो वर्किंग हैंड होगा, उसमें जो है ना, जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस पर्टिकुलर जो है ना टूल को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज known as your end effector. So for example, if you will see in this particular photograph, this is nothing but a KUKA robot. So KUKA robot में अगर आप देखोगे, so this is what my robotic arm, this is my lower arm, this is my upper arm, this is the wrist joint. ये आपका जो है ना wrist joint है, और ये यहाँ पे जो particular part है, this is nothing but the end effector. So this is what our end effector. So let me go to when we talk about this KUKA robot, let me go to this KR series. तो कुका का अगर ये KR सीरीज देखेंगे तो वी हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. So for example, we have an arc welding assembly, we have the mounting or inserting type of a robot, we have handling for the machine tool, we have the machining, we have measuring. So we have lots of the operations like your soldering and everything. So we have lots of industrial applications and some more applications like clean room applications are there. So these are some of the applications which are used by this KUKA robot. अगर आप यहाँ फिगर पे देख सकते हो तो ये जो है ना मेरा क्या है, KUKA रोबोट KR सीरीज का जो है ना रोबोट है. आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द फिक्स बेस. ये आपका क्या है? फिक्स बेस है. ये आपका यहाँ पे जो है ना, दिस इज योर जॉइंट 1 जो कि आपका जो है ना रोटेटिंग है. दिस इज योर जॉइंट 2. ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट कैसा है? इट्स रेवोल्यूट जॉइंट. ये आपका रेवोल्यूट जॉइंट है, ये आपका रेवोल्यूट जॉइंट है. दिस इज योर लिंक 1. हियर अगेन यू विल गॉट अ रेवोल्यूट जॉइंट. अगेन you got a link to. Here you have this particular is nothing but what? Your wrist joint. ये क्या है? आपका wrist joint है. So you can see here, because of this revolute joint you have a 1 degree of freedom. Because of this revolute joint you have a 1 degree of freedom. Because of this revolute joint you have a 1 degree of freedom. And because of this wrist joint you have a 3 degree of freedom. So this KUKA robot में जो है ना, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इट्स अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है ना, ये एक मेरा इंडस्ट्रियल रोबोट है विच कैन बी यूज फॉर अ डिफरेंट एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल योर आर्क वेल्डिंग, और जो है ना आपका जो भी इंसर्टिंग है, माउंटिंग है. सो दीज आर लॉट्स ऑफ द एप्लीकेशंस. चाहे आप जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखो या फिर आप जो है ना प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में देखो, दिस टाइप ऑफ रोबोट्स आर वेरी मच यूज्ड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो ये एप्लीकेशंस में क्या होगा? द डिफरेंट टूल वी आर गोइंग टू यूज और डिफरेंट एंड इफेक्टर वी आर गोइंग टू यूज. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो है ना हमारा जो एंड इफेक्टर है दैट इज डिफरेंट. तो यहाँ पे डिफरेंट एंड इफेक्टर को हम लोग यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क. सो that's why this end effector is very important for us to understand what is the how it is working, what are the different kind of end effectors are there which can be used in the industrial robots or your manipulators. Okay, now let me come to this particular slide. So when we talk about the end effector, तो end effector को हम लोग कैसे define कर सकते हैं? End effector is a device attached to the wrist of the manipulator. आपका जो भी मैनिपुलेटर होगा उसका जो रिस्ट जॉइंट होगा उस पे हम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, इसको अटैच करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग, होल्डिंग द मटेरियल्स. what we are doing, we are holding the materials, the part of the tool to perform a specific task. तो ये और क्या करता है? इट्स ट्राइंग टू प्रोवाइड यू some kind of a specific task. You are able to perform some time of a specific task. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस स्लाइड में जाके देखें तो जो है, अगर आर्क वेल्डिंग के लिए जो है ना हम लोग देखें तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमारा जो टूल होगा दैट कैन बी अ वेरी डिफरेंट टूल एज कंपेयर टू द सोल्डरिंग. अगर मैं सोल्डरिंग करना चाहूंगा तो जो है ना आर्क वेल्डिंग का अगर जो है वहां पे मेरा जो है एंड इफेक्टर लगा होगा तो उसके थ्रू पे मैं सोल्डिंग नहीं कर सकता.
आर्क वेल्डिंग का अगर मेरा टूल लगा होगा तो मैं माउंटिंग नहीं कर सकता. सो आई रिक्वायर्ड अ different kind of an end effector to perform a different kind of a task. Okay. So here in this particular figure you are able to see this I have taken from the robotic society. The robotic society, ये जो है ना वहाँ का जो मैगजीन है 2019 का जो है ना जो मैगजीन है, उस मैगजीन से मैंने ये फोटोग्राफ्स लिया है. तो यहाँ पे ये आपका जो है ना 2 फिंगर ग्रीपर है. सो दिस इज काइंड ऑफ एन एंड इफेक्टर. तो ये जो ग्रीपर है यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ग्रीपर कि ये जो है ना सिर्फ ग्रिप करने के साथ में होल्ड भी कर सके. So here again the force is required. So you can see in this particular figure, if we are going to increase the force, अगर ये जो है ना जो दो फिंगर हैं इस एंड इफेक्टर का, अगर उसके फोर्स को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो मे बी वी आर गोइंग टू लूज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट जो है ना दिस ऑब्जेक्ट कैन बी हार्म. तो जो है हमको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना. सो वी हैव टू अप्लाई इन सच अ वे, इतना ऑप्टिमल फोर्स लगाना है कि जो है ना इट कैन होल्ड, इट कैन नॉट ब्रेक दिस पर्टिकुलर आइटम. एट द सेम टाइम पे अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना कोई हैवी ब्लॉक्स के बारे में बात करें, सो देन ऑल्सो आवर एंड इफेक्टर शुड होल्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट. ऐसा नहीं हो कि जो है ना अगर हैवी आइटम हो तो वो जो है क्या करे, स्लिप करके गिर जाए. सो आवर एंड इफेक्टर शुड बी have some characteristics. We are able to not only hold the object, we are able to carry the object. उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है ना कुछ दूर कैरी करके भी ले जा सकें. तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है ना होनी चाहिए. ओके. So this is nothing but this is an example of an end effector which is nothing but the adaptive gripper. Let me go back to this particular slide. So adaptive gripper. So what do you mean by this adaptive gripper? That gripper can adapt their self with the different the object is, ये जो different object की तरह जो है ना, जैसे अगर अलग अलग object हम लोग लेके जा रहे हैं तो it can adjust their self and adapt their for the different applications. Okay. So this is a kind of an adaptive end effector gripper which is nothing but a robotic end effector. ठीक है. अब जो है ना अगर हम लोग एंड इफेक्टर को देखेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन द एंड इफेक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप. So mostly we are looking at two parts. One is in a tool, second one is in a gripper. So gripper is also part of a tool, but we are defining as in a separate form because this gripper are mostly used in lots of the manipulator. ठीक है. तो अगर हम लोग जो है ना ब्रॉडली अगर देखें तो हम लोग दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं. अगर हम लोग टूल बोल रहे हैं तो टूल क्या हो गया कि हमारा जो एंड इफेक्टर है डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम लोग टूल बना रहे हैं दैट वी कैन डिफाइंड एज एन अ टूल. और किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए और होल्ड करने के लिए जो भी हम लोग जो है ना टूल बनाएंगे दैट इज नोन एज एन अ ग्रिपर. सो very broadly we can define our end effector can be divided into a two part. One is in a tool, second one is in a gripper. So let me go to the tool first. When we talk about this KUKA robot, again when we talk about this two KUKA robot with the different tools, you are able to see here one hexa blade is there. So with the help of that blade, this KUKA robot is able to cut this particular wooden block. तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि जो है ना ये मेरा क्या है एंड इफेक्टर है. एंड इफेक्टर पे मैंने क्या कनेक्ट करके रखा हुआ है, एक जो है ना मैंने ये ब्लेड कनेक्ट करके रखा हुआ है. यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ एन ड्रिलिंग ऑपरेशन. यहाँ पे जो KUKA रोबोट है इट्स एबल टू ड्रिल द थिंग. हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं. हियर यू आर एबल टू सी इट्स आर्क वेल्डिंग. वी आर एबल टू डू द आर्क वेल्डिंग. Here you can see that we have two tools together in a one KUKA robot. तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का टूल होता है दैट इज यूज फॉर द स्पॉट वेल्डिंग. ये जो है ना हम लोग स्पॉट वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं. यू कैन सी हियर आल्सो वी हैव एन आर्क वेल्डिंग. फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन परफॉर्म द स्पॉट वेल्डिंग. तो ये मेरा क्या है वेल्डिंग के लिए टूल है, ये मेरा स्पॉट वेल्डिंग के लिए टूल है, आर्क वेल्डिंग के लिए टूल है, मेरा ड्रिलिंग के लिए टूल है, मेरा जो है ना कटिंग के लिए टूल है. वी हैव अ डिफरेंट टूल्स. अगर ग्रीपर भी देखोगे तो कई जगह पे ग्रीपर होता है, कई जगह पे जो है ना बहुत हैवी लोड को जो है ना उठाने के लिए मैग्नेटिक ग्रीपर्स होते हैं. बहुत सारे जो है ना चीज को हम लोग असेंबल कर सकते हैं. सो दिस इज सम एग्जांपल ऑफ न KUKA robots where the different tools are connected. So this is only some number of tools. There are n number of tools where we can use it, put it into this KUKA robot and we are able to perform some specific task. तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड अ एंड इफेक्टर. सो दिस इज द टूल.
लेट मी गो टू दिस सर्जिकल टूल। अगर जो है ना हम लोग सर्जिकल टूल्स के बारे में बात करें, सो यू कैन सी दिस इज द दाविंची काइंड ऑफ अ रोबोट, जो है ना हमारा क्या सर्जिकल रोबोट है। तो from here also we are able to perform this type of a task also. Our robot is capable to do this. So stitching का काम अगर कर रहे हैं तो then it is possible. So यहाँ पे जो है ना जो टूल लगेगा वो टूल अलग होगा. Suppose if we want to cut the skin, तो स्किन को कट करने के लिए जो है ना we required a different kind of a scissors. तो जो टूल होगा वो जो है ना we have a number of surgical tools only. You can see here we have a different tools. सिर्फ सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो देयर आर द डिफरेंट टूल्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जैसे अगर मेरा जो है ना ब्लेड होगा, ब्लेड क्या करेगा, या जो सीजर होगा वो क्या करेगा, इट्स गोइंग टू कट द स्किन। अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को उठाना है तो आई विल यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ना यू नो द टूल्स। Like here we have a needle driver, we have a large needle driver, we have a mega needle driver. So we have a different kind of tools are there. For the surgical operations also we have an n number of tools. Okay, so I think you are able to understand why this tool is very important. So this tool is nothing but a kind of an end effector. तो ये एंड इफेक्टर क्या होगा कि जो भी आपका जो है ना रोबोट्स है, उस रोबोट्स के जो रिस्ट जॉइंट है उस रिस्ट जॉइंट के साथ में कनेक्ट होगा टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड इफेक्टर के साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अ टूल। नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीपर, first you have to understand the gripper. In the first figure I have shown you the gripper. So what gripper will do, it's a going to, you know, for example this is a gripper. What it will do, it is going to hold some object. This is the object. This object can be held by this gripper. So this kind of a thing is nothing but the gripper. हम लोग को क्या करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करना है, ग्रास्प करके जो है ना we have to hold it. So if we see the classification of this gripper, so how can we classify? We can classify into a single gripper and a double gripper. What do you mean by the single gripper? For example, if any object is there, इस object को जो है ना अगर मेरे को hold करना है, if I am using a single gripper, तो क्या करेगा, अकेला gripper जो है ना इसको hold करेगा. If we are using the two grippers, और अगर हम लोग जो है ना इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए दो ग्रिपर यूज करें, देन इट इज नोन एज एन डबल ग्रिपर. सो वी हैव अ सिंगल ग्रिपर, वी हैव एन डबल ग्रिपर. लेट मी गो बैक टू द टूल. यहाँ पे आप जो है ना देख सकते हो, दिस इज अ सिंगल टूल, दिस इज अ डबल टूल, राइट. हियर वी हैव एन टू टूल्स, हियर वी हैव एन सिंगल टूल इन अ वन रिस्ट. हमारा जो है यहाँ पे जो है ना जो आर्म है, जो हमारा रोबोटिक्स आर्म है, इसका जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पे टू टूल्स है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टूल्स है. सिमिलरली what happened if your wrist joint has only single gripper, then it's known as a single gripper. If you have a double gripper, then it's a double gripper. Okay, when we talk about the second classification में how we can define a internal gripper and the external gripper. So for example, if you have a some hollow body, for example this is a pipe. अगर जो है ना हम लोग एक पाइप को जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर दिस पाइप. So this pipe has a hollow body. So जो है ना if you will able to see, so this is a kind of a 3D structure of this particular pipe. Okay, so ये क्या है, इसके अंदर में जो है ना we have one hole. तो जो internal grippers होगा, internal grippers, how this gripper will be there, it's going to hold from the inside. अगर जो है ना हम लोग inside से इसको जो है ना grip करें. Okay, let me redraw this figure using the different color. Let me use the different color. अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा particular object है, suppose this is my object. Okay, suppose this is my object. इस object को अगर मेरे को hold करना है, so what I will do, I will make a gripper. What it will do, it will grasp from inside. ये inside से क्या करेगा, it will take it. इसको कैसे hold करेगा, अंदर से जो है ना इसको जो है ना hold कर रहा है. So this kind of a gripper is known as an internal gripper. ये जो है ना क्या कर रहा है, जो भी मेरा यहाँ पे जो solid materials है, अगर ये hollow materials है या जो है ना इसके internal space पे जो है ना अगर आपका जो है ना space है,
तो दिस इज नथिंग बट द ग्रिपिंग विच इज नोन एज योर इंटरनल ग्रिपर। अगर एक्सटर्नल ग्रिपर के बारे में बात करें तो ये क्या होगा कि अगर सेम ऑब्जेक्ट, इफ यू विल कंसिडर दिस सेम ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, लेट मी ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं बाहर से जो है ना होल्ड करूं, if this is held by the gripper from the outer side, then this is known as an external gripper। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ग्रिपर हो गया। सो दिस इज व्हाट इंटरनल ग्रिपर, दिस इज व्हाट द एक्सटर्नल ग्रिपर, ये एक्सटर्नल ग्रिपर। Okay, now if we will go for the next classifications, we have a soft gripper and we have a hard gripper। तो soft gripper और hard gripper में जो है ना डिफरेंस क्या है कि when we talk about the soft gripper में क्या होता है, we have the area contact जो है ना, when we talk about the soft gripper, what we have the area contact। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है ना, अगर मैं यहाँ पे एक पेन के बारे में बात करूं, सपोज दिस इज एन पेन which I want to hold it। So if I am going to cover this particular area, तो क्या होगा कि जो है ना मेरे को जो अप्लाइड फोर्स है, दैट फोर्स शुड नॉट बी दैट मच हाई। मैं बहुत सॉफ्टली जो है ना उसको क्या कर सकता हूं, पकड़ सकता हूं, होल्ड कर सकता हूं, कैरी कर सकता हूं। सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो आपका जो एरिया कॉन्टेक्ट होता है, व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ना एरिया इन द कॉन्टेक्ट, देन द ग्रिपिंग टेक्निक इज नथिंग बट द सॉफ्ट ग्रिपर। और अगर हम लोग हार्ड ग्रिपर के बारे में बात करें, तो हार्ड ग्रिपर में क्या होगा, यू हैव अ पॉइंट कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट मतलब क्या होगा कि सपोज दिस इज योर पेन, अगर ये आपका पेन है, तो इस पेन पे जो है ना अगर सिर्फ 2 पॉइंट पे ही जो है ना अगर आप जो है ना होल्ड करोगे, देन यू हैव टू प्रेस इट अ लिटिल बिट मोर। आपको जो है ना ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा। एंड व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर्ड टू गिव द मोर फोर्स टू होल्ड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हार्ड ग्रिपिंग में क्या होगा, यू हैव द पॉइंट कांटेक्ट। ओके, सो सॉफ्ट ग्रिपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो है ना यू हैव ना एरिया कांटेक्ट, आप जो है ना लार्जर एरिया को कवर कर रहे हो। व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्ड ग्रिपिंग, यू आर कवरिंग अ वेरी स्मॉल एरिया इन द कांटेक्ट विच इज इन अ पॉइंट कांटेक्ट। तो पॉइंट कांटेक्ट जो है ना आपका क्या, हार्ड ग्रिपिंग हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू विल सी कि जो है ना अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको जो है ना ग्रिप करना, वहां पे जो फोर्सेस लगते हैं, दैट फोर्सेस आर हाई। अगर जो है ना आपका शेप, अगर जो है ना अगर आपका जो है ना स्मूथ शेप नहीं है, देन व्हाट द फोर्स रिक्वायर्ड इज नॉट दैट मच हाई। हमको ज्यादा जो है ना फोर्स जो है ना नहीं लगता उसको हैंडल करने के लिए। ओके, सो दिस आर द 2 एग्जांपल ऑफ a soft gripper and hard gripper। Now let's come to the another classification, that is nothing but the active gripper and the passive gripper। When we talk about the active gripper, तो एक्टिव ग्रिपर का मतलब क्या हो गया, दिस ग्रिपर इज इक्विप्ड विद द सेंसर। इक्विप्ड विद द सेंसर मतलब क्या हो गया कि जो है ना वी हैव सम काइंड ऑफ अ सेंसर इन आवर दिस ग्रिपिंग मैकेनिज्म। जैसे अगर मैं जो है ना ह्यूमन हैंड को बोलूं अगर ह्यूमन हैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन हैंड है, दैट इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रिपर। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू होल्ड द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सम सेंसर डेटा। यहां से हम लोग क्या, सम सेंसर्स डेटा को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो ह्यूमन आर्म है, जब मैं इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ना अगर होल्ड कर रहा हूं, तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई एम एबल टू यूज दिस टच सेंसिंग। उस टच सेंसिंग से क्या होता है, आई एम एबल टू नो कि जो है ना कितना फोर्स मेरे को डालना है, कितना फोर्स मेरे को नहीं डालना है, कैसे करना है, इज इट अ हार्ड, इज इट अ सॉफ्ट, विच काइंड ऑफ एन बॉडी और विच काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई एम होल्डिंग। तो जो है ना दैट एक्टिव ग्रिपर विल इक्विप्ड विद द सेंसर। तो ये आपका सिर्फ टच सेंसर नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एन सेंसर, बट इट्स इक्विप्ड विद द सेंसर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव ग्रिपर डू नॉट हैव एनी सेंसर। कोई जो है ना सेंसर यहाँ पे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो है ना, इफ यू कैन सी सम काइंड ऑफ रोबोट्स which are used to put this piston into this particular block। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो है ना अगर मेरे को प्लेस करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दिस यू नो द पैसिव ग्रिपर। तो पैसिव ग्रिपर क्या करेगा, इट विल नॉट इट विल गो फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेगा, इट विल ट्राई टू फाइंड दिस पर्टिकुलर होल, और उस होल में क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सिलेंडर को जो है ना यहाँ पे डालने की कोशिश करेगा।
So that is the objective of this kind of a robotic system. तो पैसिव ग्रिपर में क्या होगा, यू डू नॉट हैव ना एनी सेंसर, लेकिन अगर इसी के साथ में मैं अगर कैमरा को जो है ना डाल देता हूं, अगर मैं वहां पे विजन सेंसर डाल देता हूं, तो विजन सेंसर क्या करेगा, इट्स गोइंग टू फाइंड आउट दिस एजेस, ये एज को फाइंड आउट कर लेगा कि वेयर इज द एजेस, और एक बार अगर एजेस पता चल गया और उसका कोऑर्डिनेट्स अगर हमको पता चल गया, सो दिस ब्लॉक कैन बी इंसर्टेड हियर स्मूथली। तो यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी स्मूथली के साथ जो है ना हम इस ब्लॉक को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सो वहां पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है ना इमेज या फिर जो है ना विजन को ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव ग्रिपर हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर द एक्टिव ग्रिपर्स आर नथिंग बट इक्विप्ड विद द सेंसर, और पैसिव ग्रिपर में क्या होता है, आपका कोई सेंसर जो है ना इक्विप्ड नहीं होता। सो वो जो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करता है किसी भी जो है ना चीज को परफॉर्म करने के लिए, या फिर जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर की आईज को यूज करता है एज अ फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। अगर जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या करेगा, वो उसको जो है ना ले जाके देखेगा कि इज इट फिटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ a passive gripper. Okay, so these are some of the classifications. You can also classify into a different manner also. So let me go to the some very useful or most commonly used gripper. तो सबसे जो है ना ज्यादा यूज जो ग्रीपर है, that is the mechanical gripper. मैकेनिकल ग्रिपर का मतलब क्या हो गया कि दिस ग्रिपर हैज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि इट यूजेस द मैकेनिकल फिंगर एक्चुएटेड बाय द सम मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिज्म से हम लोग जो है ना इसको एक्चुएट कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ ना ग्रिपर्स आर नोन एज अ मैकेनिकल ग्रिपर। तो ये क्या हो गया, आपका मैकेनिकल ग्रिपर हो गया। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज इन वन फिंगर, दिस इज इन अनदर फिंगर, एंड इफ आई एम गोइंग टू मेक एन ग्रिपर, इसको जो है ना यूज करके अगर मैं कोई एक ग्रिपर बना रहा हूँ by using any method, if I am able to hold this particular object, so this kind of an gripper is known as a mechanical gripper. तो ये क्या होता है, ये आपका जो है ना लेस वर्सेटाइल होता है, इट्स लेस फ्लेक्सिबल and cost is also very less. So because of this cost thing, most of the times we are using this mechanical grippers. Okay, but the flexibility is less. इसमें जो है ना flexibility आपकी थोड़ी कम होती है. It's a less versatile also. Let's see some kind of an example, some examples related with this mechanical gripper. So when we talk about the example, one by one we will go all these. So this is the first example, what it is, a gripper with a linkage actuations. Linkage actuations का मतलब क्या हो गया, for example, if we have a some linkage, for example, let me go through this particular body. तो यहां से क्या होगा, if I have some mechanism in any way, if I am going to connect, let me draw a fresh diagram. Okay, so this kind of a gripper, for example, this is a gripper. So this is linked. If I am going to take this in this particular direction, then these are going to be closed. If I will take in this particular direction, it's going to be open. So this gripper is going to be open and close when this direction is dependent. So this is a gripper with the linkage actuations. We have a swing block mechanism also, that is also a linkage actuations. हम लोग और देखेंगे जो है ना ग्रिपर जो है ना आपका जो है ना काम फॉलोवर एक्चुएशंस पे। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैम फॉलोवर, तो कैम फॉलोवर में क्या होगा कि जो है ना दिस इज अ कैम एंड इट्स गोइंग टू फॉलो बाय द रोवर। फॉर एग्जांपल, अगर जो है ना ये रोलर मेरा जो है ना फॉलो कर रहा है, ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू गिव द फोर्स इनटू दिस कैम, तो ये जो फॉलोवर है, ये फॉलोवर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा, देन व्हाट इट विल गोइंग टू बी ओपन। ये जो है ना आपका जो ग्रिपर है, दिस ग्रिपर इज गोइंग टू बी ओपन, दिस ग्रिपर इज गोइंग टू बी ओपन। और जब जो है ना ये आपका जो है ना बैक साइड पे जाएगा, दिस रोलर विल कम डाउन, और रोलर विल कम डाउन एट दैट टाइम दिस ग्रिपर इज गोइंग टू बी क्लोज। तो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑपरेशन के लिए क्या होगा कि दिस जो आपका कैम है, दैट कैम हैज टू बी मूव्ड।
और ये जो फॉलोवर है यहाँ पे जो है ना, जो फॉलोवर है वो हमारा रोलर टाइप का है. दिस रोलर टाइप ऑफ फॉलोवर विल व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोवाइड यू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रिपर. ठीक है. इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना रैक एंड पिनियन रोटरी एक्चुएशंस भी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ काइंड ऑफ ना सिस्टम. यहाँ पे जो है ना, सपोज दिस इज योर वन आर्म, this is your second arm. So if it is going to rotate in the clockwise direction, what it will happen, it is going to, अगर ये जो है ना आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो what it will do, it is going to open, it's going to be open. Okay, again it's a depend upon the gear, how we are going to put this gear, इस gear के ऊपर पे डिपेंड करेगा. If we are going to provide this kind of an motion, तो ये क्या होगा, क्लोज होगा. So this is kind of ना rake and pinion type of rotary actuations. तो ये ग्रिपर क्या हो जाएगा, आपका रोटरी एक्चुएटर्स से जो है ना ऑपरेट हो सकता है. Then we have ना ग्रिपर with the screw action. स्क्रू एक्शन में क्या होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ एन स्क्रू एक्शन, राइट. तो जैसे ही मैं जो है ना ये स्क्रू ऑपरेशन यहाँ पे जो है ना रोटरी मोशन प्रोवाइड करूंगा, व्हाट इट विल डू, इट विल ओपन एंड क्लोज दिस ग्रिपर. सो दिस इज आल्सो अ ग्रिपर विद द स्क्रू एक्चुएशंस. वी हैव अ ग्रिपर विथ रोप एंड पुली. रोप एंड पुली टाइप के ग्रिपर में भी क्या होगा, यू हैव अ पुली एंड व्हाट यू हैव दिस रोप इज देयर, and with the help of this you are able to open or close your gripping mechanism. So this is kind of an rope and pulley type of actuations. Okay, so let me go to the some of this mechanical gripper. इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है ना देखते हैं कि how you are able to design such kind of a gripper. After that we will see this particular video. A very small video is there. After that we will see this particular video. So let me go to the linkage actuations. तो अगर इस टाइप का जो है ना ग्रिपर के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ना ये जो आपका जो ग्रिपर है यहाँ पे लेट मी ड्रॉ अ वेरी सिंपल ग्रिपर. लेट मी फर्स्ट फिक्स दिस ग्राउंड. ये जो है ना दिस इज माय ग्राउंड. ये मेरा जो है ना ग्राउंड जो है ना आपका क्या हो गया, आपका जो है ना एक्चुएशंस यूनिट हो गया. लेट मी टेक a particular part. Okay, let me draw it first. So here we are going to perform a gripping action. For example, this is my gripper. This is connected with the another revolute joint, and this revolute joint is connected with the piston. Okay, so let's talk about this piston and cylindrical mechanism. So this is what a fixed base. Okay, so this is what your piston. So what exactly happened, if you are going to, let me change the color, let me use a red color. Okay, so if I will apply the force in this particular direction, and if my P will come here, what exactly happened, this particular pulley will come up to here. So this is going to be here, right? So okay, okay, so if I am going to take this particular P into this particular part, okay, so this is going to move up to here. अगर ये मूव होगा तो क्या होगा, दिस विल कम हियर, और यहाँ से जो है ना दिस इज कनेक्टेड. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, योर ग्रिपर विल कम हियर. आपका जो ग्रिपर है वो कहाँ आ गया, वहां आ गया. दिस पुली विल कम वेयर, इट विल कम हियर, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है ना. ओके, लेट मी गो बैक. ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये पुली आ जाएगा. और यहाँ से जो है ना ये जो है ये मेरा फिक्स बेस है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो मेरा ग्रिपर है वो ग्रिपर क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी ओपन. तो ये मेरा क्या हो गया जो है, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया. लेट मी गो टू द अनदर काइंड ऑफ लेट मी यूज द अनदर कलर. if my piston will be here, अगर मेरा पिस्टन जो है ना ये आगे की तरफ आया, if I will apply the force in this particular direction, this particular mechanism will be happen. ये जो मेरा particular जो joint है, revolute joint,
ये यहाँ आ जाएगा, तो बिकॉज इफ इट विल कम हियर, इफ इट विल कम हियर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दिस विल कम हियर, और इसकी वजह से क्या होगा, दिस इज योर फिक्स्ड बेस, तो फिक्स्ड बेस की वजह से क्या होगा कि जो है ना, जो आपका आपका जो ग्रीपर है, दिस इज व्हाट योर ग्रीपर विल बी। सिमिलरली व्हाट्स गोइंग टू बी हैपेंड, इट विल कम हियर, तो ये वाला भी जो है ना पार्ट क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रीपर है वो ग्रीपर कहाँ आ जाएगा। सो when I am moving, when I am giving the force into this particular direction, अगर मेरा पिस्टन जो है ना आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि इट्स गोइंग टू क्लोज, ये ग्रिपर जो है ना मेरा क्लोज हो रहा है। और अगर जो है मेरा जो पर्टिकुलर फोर्स है अगर ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरा ग्रिपर जो है ना ओपन हो रहा है। सो आई एम एबल टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट एंड वी आर एबल टू रिलीज द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स अपॉन दिस काइंड ऑफ एन एक्चुएशन सिस्टम। तो ये जो एक्चुएशन है, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द सर्वो मैकेनिज्म, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, किसी भी तरीके से जो है ना वी आर एबल टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एन एक्चुएशन सिस्टम्स। सो दिस इज नथिंग बट अ ग्रिप्ड लिंकेज एक्चुएशंस। तो लिंकेज एक्चुएशंस का क्या है, इट इज एन एग्जांपल। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल। लेट मी सी दिस स्विंग ब्लॉक। अगर स्विंग ब्लॉक के बारे में बात करें तो लेट मी ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम। सो here also what we have let me draw it first. Okay, from this particular object we have this. So I have a one swing block here. Okay, so this is connected with, you know, the another. Okay, so this is connected somewhere and this is what a fixed joint. So this is what a fixed joint. So this is a fixed joint. Let me join this particular value and connect with this again a piston and a cylinder. Okay, so इस टाइप के जॉइंट में अगर आप देखोगे तो व्हाट वी हैव अ स्विंग ब्लॉक। ये दिस इज नथिंग बट व्हाट माय स्विंग ब्लॉक। So because of this swing block, what exactly happened, let me change the color. So if you will see, if I will move, if my body is move into this particular direction, अगर ये जो है ना पिस्टन इधर जाता है, so what it will move up to here, it will move into this particular direction. ये डायरेक्शन पे जो है ना ये जब मूव होगा, दिस इज द फिक्स्ड बेस, ये आपका जब मूव होगा तो क्या होगा कि जो है ना इट विल कम अप टू दिस। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड, because of this it will come here, this is what my swing block, because of that it's going to slide। ये क्या हो सकता है, स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करके ये यहाँ आ जाएगा। सो हाउ व्हाट आई विल गॉट दिस, माय ग्रीपर इज गोइंग टू क्लोज। तो यहाँ पे मेरा ग्रीपर क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। लेट मी टेक द अनदर कलर, लेट मी टेक एज एन रेड कलर। ओके, black, okay, black and these are going to be same, so let me use the another color. Okay, if my block will be here, what exactly happened, this is going to be in this particular place। अगर ये पर्टिकुलर प्लेस पे होगा तो ये जो है आपका आपका ये जो आर्म है, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द स्विंग ब्लॉक विल गो इन विच डायरेक्शन, इट विल गो इनटू द अपर डायरेक्शन। The swing block will go into the upper direction. So what your arm will be, going to open. So here what it is opening। जब हम लोग जो है ना इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहे हैं, जब यहाँ पे मेरा इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, और अगर मेरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है देन इट्स गोइंग टू क्लोज। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस स्विंग ब्लॉक। आपका ये जो स्विंग ब्लॉक है, लेट मी ड्रॉ अ स्विंग ब्लॉक सेपरेटली हियर। सो हाउ इट विल बी लाइक, if it is going to move, so what it is swimming, it's a swing।
ये स्विंग हो रहा है, इस स्विंग होने की वजह से क्या होगा, इट्स गोइंग टू चेंज द लोकेशंस. Okay, so that's why we are able to get this the gripping mechanism. So this is nothing but a kind of an example of a swing block mechanism. Okay, अगर हम लोग जो है ना कैम फॉलोवर टाइप का जो है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्चुएशंस, तो अगेन लेट मी ड्रॉ अ कैम फर्स्ट. Okay, here we have considered the roller. This roller is nothing but the follower. Let me connect a spring in between this. So here we have connected a spring. Let me fix this base. ये जो base है, ये base मेरा क्या है, fix base है. And let me connect a robotic arm or the gripper here. So this is what my gripper. Okay. Now this is connected with what? Again, this piston and cylinder. This is what a piston and this is what your cylinder. तो piston और cylinder के साथ पे फिर से मैं इसको connect कर दिया. Now if I am giving the force, okay. So let me use the red color. अगर मैं यहाँ पे जो है ना फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में, इफ माय पिस्टन विल कम अप टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू बी हैपन, दिस इज गोइंग टू बी डाउन. ये आपका जो है ना, आपका जो है ना, लेट मी ट्रेक इट दिस. सो ये जो आपका जो रोलर है, दैट रोलर विल कम अप टू हियर. दिस इज व्हाट अ फिक्स बेस. फिक्स बेस होने की वजह से जो है ना रोलर का क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द रोलर ऑपरेशन. सो व्हाट यू विल गॉट दिस क्लोज ग्रिपर. आपका जो है ना जो ग्रिपर होगा, दैट इज गोइंग टू बी क्लोज. एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स इनटू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर जो है ना फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, देन व्हाट हैपेंड, देन इट्स गोइंग टू बी, लेट मी ड्रॉ इट हियर. तो वहां पे क्या होगा कि आपका रोलर जो है ना, आपके जो है ना इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है. इट्स गोइंग टू रीच इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेस. This is your joint. Okay, so now you are able to see this, your this is going to be open. हम लोगों ने जो पहले वाला डायग्राम बनाया था वो कैसे था, let me draw it separately. यहाँ पे रोलर कहाँ आ गया था, आपका जो फॉलोवर है, फॉलोवर जो है ना आपका नीचे आ गया था. So this is your fixed base, this is the spring. So this is what a gripper. So यहाँ पे ग्रीपर क्लोज हो गया था, यहाँ पे ग्रीपर क्या हो गया है आपका जो है ना, आपका जो है ना यहाँ पे देखोगे तो ग्रीपर जो है ना आपका क्लोज हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, ओपन हो गया है. सो दिस इज काइंड ऑफ एन मैकेनिज्म विच इज नथिंग बट द कैम फॉलोवर. कैम फॉलोवर में क्या हो रहा है, हियर दिस रोलर इज गोइंग टू फॉलो एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज यूज्ड एज एन कैम. तो ये आपका जो है ना कैम फॉलोवर टाइप का जो है ना एक्चुएशन सिस्टम पे जो है ना हम लोग देखें तो दिस इज द ग्रिपिंग मैकेनिज्म. Let me go to the one more gripper, then we will go back to that video. तो अगर यहाँ पे जो है ना हम लोग इस तरीके का रैक एंड पेनिनियन टाइप ऑफ अगर जो है ना गियर सिस्टम के बारे में बात करें, सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट एंड देन लेट मी मेक द okay. So this is kind of a gear system. Okay, so similarly what happened, we have this type of a the rake and pinion type of arrangement. So this is connected with a robotics arm. So this is connected with the upper arm and this is connected with the lower arm. This is connected with the lower arm. Okay. अब अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो क्या होगा, इट्स गोइंग टू ओपन. ये वाला जो है ना आपका इस साइड जाएगा, ये वाला आपका इस साइड जाएगा. सो एट दैट टाइम व्हाट योर ग्रीपर इज गोइंग टू ओपन. जो आपका ग्रीपर है वो ग्रीपर कैसा होगा, इट्स गोइंग टू बी ओपनिंग ऑफ दिस ग्रीपर विल बी हैपेंड.
लेकिन अगर मैं इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, इट्स गोइंग टू क्लोज, दिस ग्रिपर इज गोइंग टू बी क्लोज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो ग्रिपिंग मैकेनिज्म है ये इस तरीके के अरेंजमेंट से भी जो है ना, यू आर एबल टू फाइंड इट आउट। यहाँ पे जो एक्चुएशंस होगा, दैट एक्चुएशंस कैन बी रोटरी एक्चुएशंस। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ एन ग्रिपर which you are able to see. So let me play a very small video. So let me play this video. This video I have taken from the YouTube. So you can see there are lots of the mechanism in which you are able to do this gripping mechanism. So this is one of the example you are able to grasp. ये भी आपका जो है ना piston and cylindrical type का arrangement है. Okay, so this is one kind of an graph. Let me increase the speed. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ एन पिस्टन सिलेंडर का जो है ना जो अरेंजमेंट है, यू आर एबल टू सी दिस इज अनदर काइंड। यहाँ पे एक बॉडी आपका स्टेबल है, दूसरा बॉडी आपका रोटेट हो रहा है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ एन ग्रिपर विच यू आर एबल टू सी। ओके, so again here you can see this kind of an arrangement also. This is another kind of an arrangement of the gripper using this piston and cylinder only. तो यहाँ पे भी जो है ना हमको एक ग्रिपिंग मैकेनिज्म दिख रहा है। दिस इज अगेन अनदर काइंड ऑफ न ग्रिपर। देयर आर n number of ways you are able to design a gripper. We have just discussed some of the basic concept कि जो है ना किस तरीके से आप कर सकते हो। देयर आर n number of न ग्रिपर। यहाँ पे देखोगे तो आपका दो एक्चुएशन सिस्टम है। आपका एक एक्चुएशन सिस्टम जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड एक्चुएशन सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। सो अगेन दिस इज अनदर काइंड ऑफ ना ग्रिपिंग मैकेनिज्म। Okay, so this is another kind of a gripping mechanism if you are able to see. So we have so many different type of gripping mechanism. So this is another kind of a gripping mechanism. This is another kind of a gripping mechanism. You are able to see here what the prismatic joints are there. Instead of rotary joint, we are using the prismatic joint here. Okay, here also we have a prismatic plus we also have this revolute joint also. So again this is the piston cylinder type of thing. Here also we have a gear, we have some rotary joints. So these are some of the different the method from where we can see such kind of operations. So I have taken this video from this THO YouTube channel, this robot gripper, 11 example of robot gripper used as a hydraulic and pneumatic cylinder. So if you are interested, you can visit this particular slide and you are able to see this particular the figure. So let me go back to our presentation, and now let me go to this vacuum gripper. So when we talk about this vacuum gripper, what we are using this vacuum as an gripping. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो है ना सेक्शन कप या जो वैक्यूम ग्रिपर है, यहाँ पे क्या करेगा, इट्स 2 कप्स आर देयर। उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, एयर के फोर्स को अगर हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यूजिंग द बर्नौलिस थ्योरम। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इट विल एबल टू ग्रास्प सम ऑफ द थिंग। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू ग्रास्प सम ऑफ द थिंग, वी आर एबल टू ग्रिप सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ एन वैक्यूम ग्रिपर। हम लोग बहुत डिटेल में इसके मैकेनिज्म पे नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे ये आपका क्या है, वेंटरी टाइप ऑफ वैक्यूम ग्रिपर है। तो ये जो ग्रिपर का ये जो आपका जो पर्टिकुलर वैक्यूम का जो ब्लॉक है, दिस जो वैक्यूम कप है, ये कप का जो वायर है दैट इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर पाइप। ओके, दिस इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर पाइप। यहाँ से जो है हमारे कुछ होल्स बने हुए हैं जहां से एयर क्या हो सकती है, पास हो सकती है। एयर पास होने के बाद यहाँ पे जो है ना आपका दिस इज वेंटूरी टाइप ऑफ, ये जो आपका एरिया में मिसमैच होने की वजह से, डिस्टर्ब्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एयर का जो है ना वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी की वजह से जो है ना जो प्रेशर इंड्यूस्ड होगा, दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी चेंज। और अगर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो यूजिंग दैट चेंजिंग ऑफ दिस प्रेशर मैकेनिज्म विल हेल्प अस टू ग्रास्प सम ऑफ द थिंग। तो हम लोग उस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये ग्रिपिंग मैकेनिज्म को देख सकते हैं। अगेन लेट मी प्ले अ वेरी स्मॉल वीडियो
so that we are able to see the operation of this, the vacuum grippers. So again, this video I have taken from some YouTube channels. So you can see directly from this particular YouTube channel. So this is a kind of a gripper. You can see the industrial manipulator. तो यहाँ पे जो है ना आपका जो वैक्यूम ग्रिपर है वो वैक्यूम ग्रिपर क्या करेगा, इट्स एबल टू होल्ड द ऑब्जेक्ट. उसके बाद जो है जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको भी क्या कर रहा है, ये जो है ना होल्ड कर पा रहा है, और होल्ड करके क्या कर रहा है, इट्स एबल टू टेक इट. So you are able to see this is a vacuum kind of a gripper. After that it will hold the object. ये जो है ना जो heavier object है उस object को भी क्या कर रहा है, hold करके जो है ना ला पा रहा है. So you can see the operation using this vacuum gripper also. So पैकेजिंग वाले जो पार्ट पे जो है ना इस टाइप का जो ग्रिपर है, you can see half of the portion can be used as a gripper. half of the portion cannot be उसको अगर हम लोग छोड़ भी दे रहे हैं then also there is no problem. So half of the portion can also act as an gripper. तो यहाँ पे जो है ना हाफ ऑफ द जो पूरा का पूरा जो मेरा ग्रिपर है उसके आधे पार्ट को भी जो है ना एज ए ग्रिपर की तरह यहाँ पे यूज किया जा सकता है, एंड यू आर एबल टू कंट्रोल. You can see here from this particular the example. Again you will see it will take half of the thing is going to on, then again it's going to half of the portion was on. So you can see this kind of a gripper also. This is a example of a vacuum gripper. ये आपका जो है ना vacuum gripper का जो है ना example है. So again let me tell you, we have taken this particular the video from this particular YouTube channel. So मैंने यहाँ से जो है ना ये वीडियो लिया है. Now let's come back to our original presentation. Let me stop this first, otherwise it will make unnecessary thing. Okay, so let me go to the another gripper. So let's talk about the another gripper. So this is nothing but a magnetic gripper. Magnetic gripper की बात अगर करें तो जो है ना ये क्या होगा कि it is used only for the magnetic materials. जो magnetic materials होते हैं जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, उनके लिए जो है ना हम लोग इस टाइप का magnetic gripper को यूज कर सकते हैं. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो है ना वी कैन यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल एज द परमानेंट मैग्नेट. अगर हम लोग देखें तो वी कैन यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल एज वी कैन यूज द परमानेंट मैग्नेट. जो पिकअप टाइम है, दैट पिकअप टाइम इज वेरी लेस बिकॉज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मैकेनिकल मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज वेरी स्ट्रांग व्हेन वी टॉक अबाउट हियर. So if you can see this particular structure, this is nothing but a kind of a mechanical gripper. तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, वी हैव अ स्टील पिन. आपका जो है ना हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टील पिन को यूज करते हैं. द एक्चुअल वर्क ऑफ दिस स्टील पिन इज नथिंग बट फॉर द स्ट्रिपिंग पर्पस. तो स्ट्रिपिंग पर्पस के लिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, स्टील पिन को यूज करते हैं. लेट मी गिव यू ना एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक ग्रिपर. अगर जो है ना फॉर एग्जांपल दिस इज अ काइंड ऑफ एन मैग्नेटिक ग्रिपर. लेट मी कंसीडर दिस इज एन मैग्नेटिक ग्रिपर. ये जो है ना आपका रोबोटिक आर्म से जो है ना जुड़ा हुआ है, इट्स अ रिस्ट बैंड. तो यहाँ पे जो भी मेरा मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, वो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा उस मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा कि इट्स गोइंग टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स. एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो है ना यू आर एबल टू सी अ मैग्नेटिक फोर्स विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर होल ऑब्जेक्ट. और इसमें ऑब्जेक्ट से होके जाने की वजह से क्या होगा, दिस पर्टिकुलर आइटम विल बी अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. सो दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू अटैच विद दिस. इसके साथ अटैच हो जाएगा, देन वी आर एबल टू ग्रास्प दिस पर्टिकुलर पार्ट. बट इफ यू वांट टू रिलीज इट, अगर जब हमको इसको रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट दिस स्टील पिन. ये जो हमारा जो स्टील पिन है, स्टील पिन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे. तो स्टील पिन को इंसर्ट करने से क्या होगा कि ये जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है इट विल गो थ्रू हियर. यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फोर्स जो है ना यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा. और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास पे जो मैग्नेटिक फोर्स वाला जो फील्ड है, यहाँ पे जो फोर्स है इट्स गोइंग टू रिड्यूस. ये जो है ना इट्स गोइंग टू रिड्यूस. और ये फोर्स अगर रिड्यूस हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है ना जिस जगह पे आपको प्लेस करना है आप वहां पे प्लेस कर सकते हो. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं. तो स्ट्रिपिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील पिन्स को यूज करते हैं. ओके,
सो whenever we talk about this permanent magnet, जब भी हम लोग जो है ना परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, then we are going to use this particular part. अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो आप जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करोगे, आप पोलारिटी को चेंज कर दोगे, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पोलारिटी पे वो ग्रास्प करेगा, जैसी पोलारिटी आप चेंज कर दोगे, इट्स गोइंग टू रिलीज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. So this is a kind of a magnetic gripper. So let me play a very small video so that you are able to see this kind of a gripper. So again I am playing one YouTube video, so you can see this YouTube video has taken from some YouTube channel. Okay, so from this particular video, if you are able to see, let me play this into 1.5 speed. So you can see here, this is nothing but a example of a magnetic gripper which is able to hold the object, heavier object, metallic heavier object, जिसको जो है ना हम लोग मैग्नेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो यू आर एबल टू सी, जब भी उसको छोड़ना होगा, व्हाट इट विल डू, इट विल यूज अ स्टील पिन्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ना इट्स एग्जांपल ऑफ आवर मैग्नेटिक ग्रिपर. Okay, so let me stop this particular video and let me go back to our slide. So this was nothing but the example of a magnetic gripper. Let me go to the another kind of a gripper. When we talk about the adhesive gripper में क्या होगा कि जो है ना, you have to use some adhesive materials. So this is used to handle the fabric or the lightweight materials. अगर कई बार क्या होता है कि for example के लिए जो है ना, sometimes if you are talking about the automatic scanning machine, तो ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीन में भी कई बार जो है ना हम लोग एडिसिव ग्रीपर को यूज करते हैं. या फिर जो हमारा बुक रीडर होता है, बुक रीडर में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए इफ इट इज इन अ बुक रीडर काइंड ऑफ एन थिंग, इफ इट इज इन अ बुक रीडर काइंड ऑफ एन थिंग, तो जो मेरा पेज को जो है ना टर्न करने के लिए क्या करेगा, इट विल यूज सम ऑफ एन एडिसिव, जो इसको क्या करेगा, अपने साथ चिपका लेगा एंड इट विल रिलीज इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो जो है ना पेज को टर्न करने के लिए भी जो है ना वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एन एडिसिव टाइप ऑफ अ ग्रिपर. तो ऐसा भी ग्रिपर जो है ना कई जगह पे यूज होते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, इट विल एड सम ऑफ द एडिसिव सब्सटेंस दैट कैन बी यूज फॉर दिस ग्रास्पिंग एक्शन. अगर एकदम नॉर्मल टर्म में अगर हम लोग बोलें तो आप अगर देखोगे कि अगर मैं एक नॉर्मल पेन को भी अगर जो है ना पानी के साथ अगर भिगा लेता हूं एंड देन इफ आई विल टच एनी ऑफ फ्लोर, जैसे अगर मैं जो है आटा को या फिर जो है ना बेसन को, मैदा को अगर इसे टच करता हूं, तो दैट स्मॉल पार्टिकल ऑफ दैट आटा विल कम एंड टच विद दिस पेन के साथ में वो आ जाएगा. तो दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन एडिसिव the materials which can use for grasping action. ठीक है, तो at least one contact surface is needed whenever we talk about this the grasping technique. इसमें जो है ना हमको जो है ना contact surface की जो है ना जरूरत होती है. ओके तो इस टाइप का ग्रिपर भी जो है ना यूज होता है, बट बहुत ज्यादा जो है ना इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता इस टाइप का ग्रिपर. बट अगेन दिस काइंड ऑफ ग्रिपर आर आल्सो यूज्ड. Let me go to the last the last slide of this particular lecture, universal gripper. अगर हम लोग यूनिवर्सल ग्रिपर के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल ग्रिपर जो ह्यूमन हैंड है, अगर आप जो है ना ह्यूमन हैंड को देखोगे, सो दैट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ग्रिपर. तो यूनिवर्सल ग्रिपर का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल ग्रिपर कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को जो है ना अगर हम लोग होल्ड कर पा रहे हैं और हम लोग अगर कैरी कर पा रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ एन gripper is known as a universal gripper. So you can see this is a universal gripper. This is another kind of a universal gripper which are available in the industry. So these are some of the universal grippers. Okay, so let me play a very small video of a universal gripper. तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो है ना वी आर प्लेइंग ओके फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, they have introduced a universal gripper. So let's see how it will be. So you can see it can able to grasp any kind of a material. Is it LED? That LED can also be gripped by that particular object. Okay, that is spring can also taken by that. So any kind of an object, any dimension object can be gripped by this particular part. So this is nothing but an example of universal gripper.
Okay, you can see this raw egg they have taken. Okay, so this is kind of a universal gripper. It's able to hold the water. It will pour the water. This pouring the water into the cup. So this is kind of a universal gripper. You are able to see in this particular the video. So let me stop this video. There are some more kind of grasping technique is there. So it's able to write also. It's able to make the writing thing also like a human hand. Okay, so let me stop this particular video here. Again, from the University of Chicago, we have taken this particular video. So let me summarize what we have done today. So we started our class with the end effector. We see some of the applications. In these applications, we are able to just identify that the end effector जो होता है आपका वो क्या होगा, जो robotics arm का जो wrist joint होता है उससे connect होता है. We have seen some kind of an end effector like here. It will try to hold or adaptive gripper हम लोगों ने देखा. हम लोगों ने different tools देखा, grippers देखा. We talk about the KUKA robot tools. We talk about the surgical tools. We talk about the different type of gripper. It's a single gripper, double gripper, internal, external gripper, soft versus hard gripper, active versus passive gripper. So we have seen some of the gripping techniques. कुछ जो है ना ग्रिपर्स के बारे में हम लोगों ने देखा. आपने मैकेनिकल जो है ना ग्रिपर्स को यहाँ पे थोड़ा सा देखा. We have seen the vacuum grippers working of. We have seen the video of this magnetic gripper also, and we also have seen this universal gripper. So these are some kind of the end effector of a robot system, which are very essential for the working of this robot. Okay, so I hope this video will help you to understand about this end effector of a robot. So let me stop this video here. Thank you very much.